SF 505 external confirmations. So, meaning audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from the third party. The third party here means the confirming party in paper form or by electronic or other medium. Okay. Now the types of external confirmation request. So it can be of two types. The first is positive confirmation request and the second is negative confirmation request. Okay. So what is positive confirmation request? So a request that the confirming party responds directly to the auditor indicating whether the confirming party agree or disagree with the information in the request or provide the requested information. Okay. The second is negative confirmation request. So it means a request that the confirming party responds directly to the auditor only if the confirming party disagree with the information provided in the request. Okay. Abhi area where external confirmation request may be obtained. तो बैंक बैलेंस confirmation or other confirmation from the banks, account receivable, account payable balance confirmations, stock laying with the third party confirmation, property title deed held by the third party, investment purchased but delivery not taken, loan from the lenders, terms of agreement or transaction with the third party. Okay. अभी अगला external confirmation procedure. So what procedure need to follow auditor? So सबसे पहले determining information to be confirmed from or requested, then select the appropriate confirming party. उसके बाद designing the confirmation request. So designing also include factor to be considered while designing the confirmation request, then sending the request. Okay, अभी डिटेल में देख लेते हैं. Determining information to be confirmed or requested regarding account balances or their elements, terms of agreements, contract, transaction. Then selecting the appropriate confirming party. So here auditor should consider knowledge about the information to be confirmed which third party has. Okay. Then designing the confirmation request. Designing also include determining that the requests are properly addressed and contain the information for the response to the sent directly to the auditor because confirmation request is sent by the management. Now important thing, the factor to be considered while designing the confirmation request. So जब भी ऑडिटर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करे तो उसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. तो असर्शन बिंग एड्रेस मतलब कौन से चीज़ के लिए हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले रहे हैं. देन स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइड RMM, then layout and presentation of request, then prior period experience on the audit of the similar engagement, then method of communication, then management authorization or encouragement to confirming party to respond to the auditor, ability of confirming party to provide confirmation request information. Okay, sending the request. So sending the request also include follow up request when applicable to the confirming party. Okay. Now next question, audit procedure in special circumstances. यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा स्पेशल सर्कमस्टांसेस दिया रहेगा और उसके बेसिस पे ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा वो हमको देखना रहेगा. तो सबसे पहली बात, मैनेजमेंट रिफ्यूज टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. सो इन दैट केस ऑडिटर शैल इंक्वायर अ रीजन एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड द रीजनेबलनेस. ओके, क्यों मैनेजमेंट क्यों मना कर रहा है. देन इवेलुएट द इम्प्लीकेशन ऑफ द रिफ्यूजल on the risk of material misstatement and nature, time and extent of the further audit procedure. उसके बाद perform the audit alternate audit procedure to obtain the sufficient and appropriate audit evidence. Okay. लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन हो तो क्या, मैनेजमेंट रिफ्यूजल appears to unreasonable या फिर auditors unable to obtain the evidence from the alternate audit procedure. In that case auditor shall
कम्युनिकेट टू द TCWG, और साथ ही साथ ऑडिटर ये भी देखेगा कि इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट्स, कि इसका इम्प्लीकेशन क्या जा रहा है ऑडिट पे। एंड देन जो ऑडिट रिपोर्ट देगा ऑडिटर, उसमें देखिए क्या करेगा, इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विथ SS 705, ओके, मॉडिफाई करेगा या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा, तो डिस्क्लेमर देगा अकॉर्डिंगली। अभी नेक्स्ट, रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर परफॉर्म करने का रिजल्ट आया, अभी देखिए उसके साथ क्या किया जा सकता है। सो फैक्टर रेजिंग डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, जो हमको रिस्पॉन्स मिला उस पे हमको डाउट आ रहा है, आई मीन टू से ऑडिटर को डाउट आ रहा है। सो इन दैट केस ऑडिटर शैल ऑब्टेन फर्दर ऑडिट एविडेंस टू रिजॉल्व द डाउट, ओके। यहाँ पर जो एविडेंस मिला था उस पे डाउट आ रहा है। अभी देखिए अगला पॉइंट क्या है, रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट इज नॉट रिलायबल, मतलब क्या, जो पार्टी ने रिस्पॉन्स दिया उस पे अपने को रिलायबल नहीं है। देन इन दैट केस ऑडिटर शैल कंसीडर इट्स इफेक्ट ऑन द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द अदर प्रोसीजर्स, ओके। देन कन्फर्मिंग पार्टी डू नॉट रिस्पॉन्ड, यहाँ पे कन्फर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, द ऑडिटर क्या करेगा, बट ऑलवेज अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा, ओके। तीसरा क्या, चौथा क्या बोल रहा है देखिए, नो कन्फर्मेशन ऑब्टेन व्हेन द ऑडिटर डिटरमाइंस दैट रिस्पॉन्स इज नेसेसरी एंड द अल्टरनेट प्रोसीजर विल नॉट प्रोवाइड द एविडेंस ऑडिटर रिक्वायर्स, ओके। मतलब क्या, ऑडिटर ऐसा बोल रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अल्टरनेट प्रोसीजर से ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पा रहा हूं, और ये जो इन्फॉर्मेशन है कंफर्मिंग पार्टी ने भी कंफर्म नहीं किया। इन दैट केस ऑडिटर शैल डिटरमाइन इट्स इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विथ SS 705, ओके। अगला, एक्सेप्शन अकर्स। एक्सेप्शन अकर्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंस आ गया किसके बीच में, तो इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म्ड और कंटेन इन द एंटिटीज रिकॉर्ड एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। तो जो कंफर्मिंग पार्टी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है और जो एंटिटी के रिकॉर्ड में है उसमें डिफरेंस आ गया, तो इन दैट केस देखिए ऑडिटर क्या करेगा, तो ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट दे आर इंडक्टिव ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो डिफरेंसेस निकल के आ रहा है वो कहीं मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, ओके। अभी अगला पॉइंट, लिमिटेड यूज ऑफ निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सो एज negative confirmation provide less persuasive audit evidence than the positive confirmation request, because in this case auditor request the outsider to provide the information only if outsider disagree. इसीलिए auditor shall use negative confirmation request as a sole substantive audit procedure only when all the following condition are present. अभी देखिए क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहली बात, लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ओके। दूसरा, अ वेरी लो एक्सेप्शनल रेट इज एक्सपेक्टेड। तीसरा, द पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस और ट्रांजेक्शंस, ओके। चौथा, द ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस और कंडीशन दैट वुड कॉज रेसिपिएंट ऑफ द नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डिसरिगार्ड द सच रिक्वेस्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या था, सबसे पहले ऑडिटर को लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल बहुत कम है, और दूसरी बात ऐसा लग रहा है ऑडिटर को कि अरे जो हम तो मैटर कंफर्म कर रहे हैं ना उसमें तो कुछ डाउट रहेगा ही नहीं, मतलब उसमें तो मिस स्टेटमेंट रहेगा ही नहीं, और रहेगा तो बहुत कम रहेगा। तीसरी बात, जो पॉपुलेशन है वो छोटे छोटे चीज़ों का है भाई, स्मॉल है और सब क्या होता है होमोजीनियस है, एक जैसा है, तो यहाँ पे भेज दो। और चौथा, ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि जो कंफर्मिंग पार्टी से हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो डिसरिगार्ड रिक्वेस्ट नहीं करने वाला है, वो तो अपने को देने ही वाला है, ओके। देन लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इवैल्यूएटिंग द एविडेंस ऑब्टेन। तो जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन से हमने रिक्वेस्ट ऑब्टेन किया, मतलब एविडेंस ऑब्टेन किया, उसके साथ अभी क्या, तो ऑडिटर शैल इवैल्यूएट, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा वेदर द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर प्रोवाइड द रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस और वेदर परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इज नेसेसरी। तो ऑडिटर क्या करेगा, ये देखेगा कि भाई हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया क्या, जो अपने को हेल्प करेगा ऑडिटर्स ओपिनियन देने में। अगर जो ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेगा कि हमको और क्या प्रोसीजर फर्दर परफॉर्म करने की जरूरत है। तो ये ऐसे हुआ अपना 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन।